So let's start with the diagram of bacteriophage since we have completed the topic of viruses. Okay. We will be making the diagram of थोड़ा सा लेंथ वाइज ये डायग्राम ज्यादा होगा, ठीक है। Make a hexagon like this firstly. ऐसे आपने एक हेक्सागन बनाना है। Then we will be making the corner part here. Like this. Okay. So this will be the helical sheath. Right? At the base of this, you have to make like this. And we make a hexagon over here. Like this. Done, beta? So from here, I'll be making some of the cane fibers. Like this. Okay. And you done, beta? This is the diagram of bacteriophage. This is the helical sheath. Fiber. Okay. This is hexagonal. Base plate. This is hexagonal base plate. This part is the corner part. This is the head part. Inside the head, it contains the nuclear core. Now the nucleus material products. RNA or DNA. That is surrounded by okay, so this is about the labeling.
right? Nuclear core, C-O-R-E core. Ion is surrounded by the protein core, hexagonal base plate, BASE. Okay, this is helical sheath. These are the tail fibers. This is called this part, and the uppermost part is the head part. Done. हाँ जी बेटा, यू कैन मेक ड्रॉ, जब हो जाएगा तो मुझे बता देना. ओके. Done, beta. Shall I move to the next topic? Only one. Okay, what about rest students? 3-4 hands are there only. Right. Chaliye, let's move to the next topic now. So we have done the types of bacteria and their structures, all the types of microorganisms, bacteria, fungi, and everything. Okay. So now let's move to the useful side of the microorganism. Okay, are these microorganisms, they are useful to us or not, right? Useful microbes or friendly. Friendly means अच्छे हमारे लिए. Okay, so the question can be asked to you like this also. What are the friendly microbes? Okay, so in this type we will be discussing about the various types of microorganisms that are actually friendly, that are actually useful to us in many number of ways. Okay, many bacteria, they are used in the making of cheese, okay, curd, and number of food items. Cakes में भी यूज होते हैं, पेस्ट्रीज में यूज होते हैं. Okay, so there are many bacteria that are actually used in the packing or in the making of various food items, curd, cheese, bread. Okay, ब्रेड हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, ये बनाने में ये सारे जो बैक्टीरिया हैं आपके यूज होते हैं. ओके, सो इसमें से फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कर्ड कंपोनेंट वेयर वी विल बी यूजिंग बैक्टीरिया जो मैंने आपको पहले भी बताया है, लैक्टोबैसिलस. ओके, दिस बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस दैट इज प्रेजेंट इन द कर्ड. Is this clear? Lactobacillus that is used in the formation of the curd. Okay, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कर्ड है वो बनता कैसे है. Have you ever seen your mother
इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द कर्ड? कभी किसी ने देखा है कि आपके मम्मा जो है वो कर्ड कैसे बनाते हैं? यस, एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड. एनी वन ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड. ओके, ईशान. यस ईशान. ईशान बोलिए. मैम वो खट्टा लेकर बनाते हैं. हाँ जी, खट्टा लेते हैं मैम, कोई खट्टा. खट्टा देते हैं. ओके, ईशान. मैम यस. अकुल. यस, अकुल बोलिए. मैम दूध में मैम खट्टा डालते हैं, फिर उसको कोई गर्म जगह पे रख देते हैं, जैसे माइक्रोवेव के अंदर. ओके, तो दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द विंटर सीजन. ओके, कर्ड फॉर्मेशन के लिए जो मेन चीज है वो ये है कि आप सबसे पहले मिल्क लेते हो. ओके, उसको आप थोड़ा सा गर्म करते हो. ल्यूक वार्म मिल्क. ल्यूक वार्म मिल्क कौन सा होता है? जो ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो. Okay, now in this particular season, since the activity of microorganism, or you can say the activity of this lactobacillus, it will be slow. क्योंकि ठंड में जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है. ठीक है, तो डेट इज फॉर द पर्टिकुलर विंटर सीजन. आप थोड़ा सा ज्यादा गर्म ले सकते हो, थोड़ा सा ल्यूक वार्म से थोड़ा सा ज्यादा गर्म, बट नॉट हॉट एंड नॉट कोल्ड. ओके, तो हमने ना ही हॉट मिल्क लेना है बहुत ज्यादा और ना ही हमने कोल्ड मिल्क लेना है. ओके, क्योंकि इन दोनों में जो आपकी माइक्रोब्स हैं, जो आपका बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया है, वो काम नहीं करेगा. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक lukewarm water and we have to add, okay, we have to add curd into it. Now you just take a small, very small quantity of curd, क्योंकि उस एक स्पून में भी या थोड़ा सा जितना भी आप लोगे, that will contain millions of these bacteria. ओके, तो अगर आप थोड़ा सा भी लेते हो तो उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का नंबर होता है. एंड दीज बैक्टीरियाज व्हेन यू पुट देम इनटू द ल्यूकवार्म मिल्क, दे स्टार्ट ग्रोइंग. ओके, तो वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और जो आपका कर्ड है दैट गेट्स फॉर्म्ड. ओके, तो आपने इसको गर्म जगह रखना होता है. अभी विंटर सीजन के लिए स्पेसिफिकली यू शुड बी प्लेसिंग देम एट अ प्लेस व्हिच एक्चुअली ऑफर सम वार्म एनवायरनमेंट टू दीज बैक्टीरियाज. क्यों? क्योंकि इन बैक्टीरियाज की एक्टिविटी जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है. और अगर हॉट है, ठीक है, अगर आपने उसको बहुत ज्यादा गर्म मिल्क में रख दिया है तो वो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं. ओके, जो कर्ड के आप बैक्टीरियाज डालोगे दैट विल बी किल्ड बाय द हॉट मिल्क ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ दैट. तो इसीलिए हम ल्यूकवार्म वाटर, जो ल्यूकवार्म मिल्क जो है वो प्रेफर करते हैं. दैट विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू द that will be used for the formation of the curd. Is this clear? So this is how the curd formation is there. Clear? This is the first use of the bacteria. Curd में lactobacillus bacteria होता है. And one more bacteria. हाँ जी, हमने एक और बैक्टीरिया किया था बेटा, that is present in the small intestine. कौन सा था वो? One more bacteria that we did, that is present in the small intestine. हाँ जी, anyone? एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया हमने किया नहीं था? एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया that is actually present in the small intestine. Okay, and that helps in the digestion and the absorption of the food. Okay, तो आपकी बॉडी में जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया. ओके, नाउ सेकंड यूज इज फॉर द क्लीनिंग ऑफ द environment. The second use is cleaning of the environment.
So this thing you are actually studying from the lower classes की जो bacteria हैं, right? They feed on the left or the decay matter, right? So उनके ऊपर कौन feed करते हैं? Bacteria और जो fungi होते हैं आपके, that actually act upon the left and the decayed matter. और वो उसको एक soluble form में convert कर देते हैं, that can be easily go into the soil, और जो soil की fertility को क्या करती है? Increase करती है. Okay, so they help in the cleaning of the environment or decomposition of the waste into the soluble form, which can be easily degraded. Okay, biodegradable form में उसको change कर देते हैं, जो easily soil में चली जाती है और जहां से soil जो है it gets nutrients. Is this clear? Next is nitrogen fixation. Next is nitrogen fixation. Akul, for the cleaning of the environment, we have studied that there are some of the bacteria and fungi that actually act upon the leftover matter. ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल मैटर है वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं और उसको एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो सॉइल में इजीली चली जाती है. ओके, थ्रू विच द सॉइल इट विल बी गेटिंग एनरिचमेंट. फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की इंक्रीज होती है. सो जो बैक्टीरियाज और फंजाई हैं, जब वो लेफ्ट ओवर के ऊपर डिके करते हैं, दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, दैट एक्चुअली हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो यहाँ से इंक्रीज होती है. ओके, हाँ जी, क्लियर है बेटा? अकुल ओके नाउ? राइट. So the next is nitrogen fixation. Nitrogen fixation में हमने क्या पढ़ा हुआ है? That the atmospheric nitrogen it needs to be fixed. जो plants है वो उसको as it is नहीं consume कर सकते हैं जो atmosphere में nitrogen है. Okay, so atmospheric nitrogen it needs to be fixed. तो इसकी फिक्सेशन के लिए हमारे पास यस वी आर हैविंग सम ऑफ द बैक्टीरियाज, राइट, जो आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया है दैट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स. ठीक है, तो आप लिखते हो ना राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ये भी क्या है? एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, द राइजोबियम बैक्टीरिया. और ये काम कौन कर सकता है? द वर्क कैन बी डन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो. ओके, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो भी जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है. द ब्लू ग्रीन एल्गी इट कैन आल्सो फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइट. और कौन सा बैक्टीरियाज हैं? एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया. अदर बैक्टीरियाज दैट इंक्लूड एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया. ओके, एजोटोबैक्टर. और क्लोस्ट्रीडियम भी यूज कर सकते हैं हम, क्लोस्ट्रीडियम. सो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे जो हैं वो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प कर सकते हैं. ओके, राइट. हाँ जी बेटा, is this clear till now for the fixation of the nitrogen, where the nitrogen it needs to be fixed? Some of the bacteria and algae like blue green algae, or some of the bacteria, rhizobium bacteria, azotobacter bacteria and clostridium bacteria, they will be using or they will be useful for the fixation process, right? Coming to the next is, अब जैसे मैंने आपको कुछ फूड आइटम्स का बताया कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ फूड आइटम्स में यूज होते हैं. इन द सेम वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कर्ड. और आपको पता है कि कर्ड जो है वो किन किन फूड आइटम्स का मेन इंग्रेडिएंट होता है बेटा? व्हाट आर द फूड आइटम्स इन विच द कर्ड इज द मेन इंग्रेडिएंट? इडली, वेरी गुड. इडलीज. और
और किसमें कर्ड डलता है? बस इडलीज में? यस, वेरी गुड, भटूरास, इडलीज, ओके। और जो भी आपकी साउथ इंडियन डिशेस होती हैं उसमें मेनली जो आपके कर्ड है, दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द कर्ड हियर? What is the role of the curd here? It is actually going to, that is actually going to initiate, or that is actually going to make the dishes, right, fluffiness. उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट करते हैं। जैसे when you are going to prepare the dough for some of the dishes, जैसे आपके कुछ डिशेस हैं, भटूरास हैं, ओके, पिज्जा है। पिज्जा कैसे बनता है आपका? आप फ्लोर लेते हो, मैदा लेते हो, ओके, फॉर द पिज्जाज हो गए, भटूरास हो गए, इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं? हम फ्लोर लेते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, ओके, एंड वी ऐड यीस्ट पाउडर। आपने यीस्ट पाउडर नहीं ऐड करना है, यू कैन प्रिपेयर देम फ्रॉम कर्ड आल्सो, ओके। आप उसमें कर्ड भी ऐड कर सकते हो, आपको थोड़ी देर उसको रखना पड़ेगा टिल द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज अचीव्ड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम उसको फर्मेंट करवाते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ द थिंग इज देयर, ओके। तो जब आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हो, सपोज आपने फ्लोर लिया, उसमें शुगर, यीस्ट पाउडर ऐड करके, थोड़ा वाटर ऐड करके उसका एक डो बना लिया अब आपने, ओके, आपने एक डो जो है वो रेडी कर लिया हुआ है। उस डो को आप क्या करते हो? यू कवर दैट फॉर सम टाइम, आप उसको कवर करके रख देते हो थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। व्हाट यू सी आफ्टर सम टाइम, हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद आप क्या देखते हो उस डो में? यस, क्या देखते हो बेटा? उस डो को आप कैसे देखते हो? क्या होता है उस डो में? एनीवन? कोई चेंज देखते हो? ओके, सॉफ्ट हो जाता है, और इट बिकम्स सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। वेरी गुड, इट बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लफी। आप देखते हो उसमें एयर स्पेसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। कैन यू सी द एयर स्पेसेस? देखते हो ना, उसमें एयर स्पेसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, ओके। द फ्लफीनेस इज एक्चुअली द एयर स्पेसेस, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। नाउ व्हाट हैपेंस इज whenever the fermentation process is there, फर्मेंट करवाने का मतलब क्या है? देखो, आपको पता है, अगर आपको याद हो, इन द 7th क्लास वी डिड द चैप्टर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वाज देयर, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या कहते हैं कि ग्लूकोज या शुगर के ऊपर जब यीस्ट जो है वो एक्ट करते हैं, यीस्ट या बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करते हैं, दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ा था? in the absence of oxygen, this is especially for the case of anaerobic, in the absence of oxygen, right, carbon dioxide is given out with a lot of heat energy. The breakdown of the sugar or glucose into the carbon dioxide, now this carbon dioxide gas, it actually makes the dough fluffy, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसमें लिबरेट हुई है वो क्या करेगी? आपकी चीजों को फ्लफी बनाती है, ओके। सो आपने देखा होगा, जैसे पिज्जा का है, डो का टेक्सचर कैसा है, राइट, फ्लफीनेस आ जाती है। इडलीज में फ्लफीनेस आती है, ढोकला, जैसे गुरदत्त हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ ढोकला, ओके, तो उसमें फ्लफीनेस आ जाती है, राइट। तो वो फ्लफीनेस क्यों आती है? इट इज जस्ट ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, हम उन चीजों को फर्मेंट करवा रहे हैं। द यीस्ट, दे आर एक्टिंग ऑन द शुगर, ग्लूकोज, okay, and in the absence of oxygen, a high amount of energy is liberated along with the production of the carbon dioxide gas here, okay. So this actually makes your dough soft and fluffy. तो fluffiness और softness जो है वो इसके कारण आ रही है, due to the anaerobic respiration of the yeast cell on the product. Is this clear? Is this clear? This is known as the fermentation process.
फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? What is the fermentation process? It is the conversion of the sugar or glucose. You can write down, it is the conversion of the sugar or glucose into alcohol. So if you have seen कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं डाटा कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद अल्कोहल आल्सो, ओके, वाटर नहीं जनरेट होता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड energy is liberated in this process, though that is less than the aerobic respiration. तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोडक्शन की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में क्या करते हैं हम? शुगर्स के ऊपर यीस्ट सेल का एक्शन करवाते हैं, जिससे वो शुगर जो है वो किस में चेंज हो जाती है? अल्कोहल में. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट सेल. By the action of yeast cell. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो आपके मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, अल्कोहल है, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस. नाउ दिस फिनोमेना इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर इन 1857. 1857 में लुइस पैस्चर ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किया था. ओके, तो आफ्टर दैट दिस प्रोसेस वाज यूज्ड सक्सेसफुली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द वाइन, अल्कोहल, ओके, एसिटिक एसिड, या जिसको आप विनेगर भी कहते हो, विनेगर की प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया. This fermentation process where we are going to convert the sugar into the alcohol, wine, acetic acid. Okay, तो इन चीजों को बनाने के लिए फिर हमने इसको यूज किया यीस्ट सेल्स को. वैसे भी यीस्ट सेल्स जो हैं वो आपकी बहुत जगह बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं, लाइक यू सेड पिज्जा डो है, ब्रेड्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज बनाने में यूज किए जाते हैं. ओके, सो बेकरीज में मेनली जो आपके यीस्ट सेल हैं दैट आर वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, प्लस their main processes. the commercial use की जब आप बात करो, commercially ये कैसे use होते हैं? so commercially they are used for the fermentation process. अब mainly जो यहाँ पर हम sugars कह रहे हैं, okay, we are using some of the food items, जैसे कि हम इसमें wheat use कर सकते हैं, barley use कर सकते हैं, we can use crushed fruit juices also. So what we are going to do is कि हम शुगर के सोर्सेज ले लेंगे, कोई भी शुगर के सोर्सेज ले लो आप. ओके, so what we will be doing, the yeast bacteria they are allowed to act on the sugar sources. तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने wheat लिया है, barley लिया है. ओके, फ्रूट जूसेस हैं, फ्रूट के जूसेस हमने ले लिए हैं, क्रश फ्रूट के. ओके, दैट दे ऑल कंटेन द शुगर, ग्लूकोज है इन सब में. ओके, दे ऑल कंटेन शुगर. सो हमने क्या करना है, यीस्ट सेल को इनके ऊपर एक्ट करवाना है. सो व्हाट यू विल सी आफ्टर सम टाइम, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको अल्कोहल की स्मेल आनी शुरू होगी उसमें से. ओके, तो आपको अल्कोहल की इसमें से स्मेल आनी जो है वो शुरू होगी. बार्ले, व्हीट या क्रश फ्रूट जूसेस में आप ले सकते हो. इज दिस क्लियर? यस. तो अगर आपको एक्टिविटी पूछ लेते हैं कि हाउ यू विल ब्रिंग अबाउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो उसमें आपने क्या करना है, यू टुक सम शुगर सोर्स. तो आप वैसे भी शुगर भी ले सकते हो, उसको वार्म वाटर में डालो. यस, दिस फिनोमेना कैन बी डन एट होम आल्सो. अकुल, थोड़ा वार्म वाटर लो, उसमें 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो आप शुगर के ऐड करो. देन यू ऐड सम यीस्ट सेल इनटू इट. ठीक है, यीस्ट सेल जो है उसके बीच में डाल देना है आपने उनको, एंड देन यू हैव टू अलाउड टू सेट दिस मिक्सचर फॉर 3-4 days, या जितने मर्जी डेज आपको लग जाए उसको रख देना है आपने एज इट इज.
ओके, सो आफ्टर फ्यू डेज आपने उसमें से स्मेल करना है। ओके, तो उसमें से आपको अल्कोहल की जो है वो स्मेल आनी शुरू होगी। ओके, राइट, प्लेस इट फॉर सम डेज और फ्यू आवर्स के लिए प्लेस करके देखो, राइट, देन यू हैव टू स्मेल द सॉल्यूशन, तो उसमें से आपको अल्कोहल की स्मेल आएगी। तो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द 3 एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि कैसे जो डो है वो आपका राइज कर जाता है। सेकेंड एक्टिविटी में हमने कर्ड फॉर्मेशन देखी कि कर्ड जो है वो कैसे फॉर्म होता है। एंड फॉर द थर्ड एक्टिविटी वी सी द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो शुगर्स है उनके ऊपर आपने यीस्ट सेल का एक्शन होने देना है। ओके, सो आफ्टर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज व्हाट यू विल ऑब्जर्व द अल्कोहल स्मेल। ओके, द alcoholic smell from the alcoholic smell from the solution you will observe.